Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Aquatic Life. Animals and plants living in different places are adapted to suit the place they live in. In this lesson, we will read about some plants and animals that live in water. We shall learn about how they have adapted or changed themselves so that they can live in water. देखिए animals and plants डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जिस प्लेस पे वो रहते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जो वाटर में रहते हैं. प्लांट्स इन वाटर. प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic plants. There are three kinds of aquatic plants: floating plants, fixed plants and underwater plants. Floating plants. Plants that float on water are called floating plants. They are small in size, they have spongy air-filled leaves and stem. Their roots also float and are not fixed to the soil. They have empty spaces throughout their bodies filled with air. Plants आपके जो वाटर पे फ्लोट करते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स. ये इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, स्पॉन्जी होते हैं, एयर-फिल्ड लीव्स होती हैं, स्टेम होते हैं. तो इनकी जो रूट्स है वो भी फ्लोट करती हैं और ये सॉइल पे फिक्स्ड नहीं होते हैं. फिक्स्ड प्लांट्स. Plants that are fixed by roots to the soil in the pond bed are called fixed plants. The stems are hollow and leaves are round and broad that float over the surface. आपके प्लांट जो रूट्स के साथ फिक्स होते हैं आपके पॉन्ड बेड पे सॉइल के साथ, उन्हें कहते हैं हम फिक्स्ड प्लांट्स. इनकी स्टेम हॉलो होती है और लीव्स राउंड होती हैं एंड ब्रॉड होती हैं जो कि सरफेस पे आपके फ्लोट करते हैं. Do you know the stomata in the leaves are on the upper side? This enables them to breathe in water. जो स्टोमेटा होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स के अपर साइड होते हैं. इससे क्या होता है कि वो एयर में ब्रीथ कर सकते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स. Plants that grow underground are called underwater or submerged plants. These plants are fixed to the waterbed. They have narrow thin leaves with no stomata. Plants जो आपके अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं अंडर वाटर या फिर सबमर्ज प्लांट्स. ये प्लांट्स जो आपके वाटर बेड के साथ फिक्स होते हैं, इनकी थिन लीव्स होती हैं जिनमें कोई स्टोमेटा नहीं होता. Animals in water. Animals that live in water are called aquatic animals. Let us discuss about some animals. Fish are animals that live in water. They have a streamlined body to swim in water easily. They have scales on their skin. They breathe air dissolved in water through gills. फिश आपके पानी में रहती हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे कि वाटर में इजीली स्विम करते हैं. इनकी स्किन में स्केल्स होते हैं. ये ब्रीद इन करते हैं एयर को जो वाटर में आपके डिजोल्व होती है. किसके थ्रू? आपके गिल्स के थ्रू. Lobsters, turtle and crabs are aquatic animals that have shells on their bodies. They have special limbs that help them to swim. They also breathe with the help of gills. Ducks, geese and swan are also known as waterfowl. अच्छा, इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं? आपके शेल्स होते हैं सरफेस पे. इनके स्पेशल लिम्स होते हैं जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. ये भी गिल्स की हेल्प से आपके ब्रीथ करते हैं. आपके ये जो बर्ड्स हैं, डक, गीज एंड सॉन, इनके कहा जाता है वाटरफॉल. नॉलेज वर्ल्ड. फिश हैव अ गुड आई साइट. दे हैव बिग स्टेयरिंग आईज विद नो आईलिड्स. फिश की आई साइट काफ़ी अच्छी होती है. इनकी बड़ी सी स्टेयरिंग आईज होती है जिसमें कोई भी आईलिड नहीं होता है. They have webbed feet to swim in water. They have a coating of oil on their feathers. अगर हम जैसे कि डक या गीस की बात करते हैं तो उनके वेब्ड फीट होते हैं जिससे पानी में स्विम करते हैं एंड इनके फेदर्स पे ऑयल की कोटिंग होती है. Dolphins, seals, sea lions, walruses and whales also live in water, but they are not fish. They have no gills like fish. They have to come up to the water surface to breathe from time to time. Unlike fish, they give birth to babies and feed their young ones with their own milk. Therefore, they are mammals like us. अब आपके देखिए, आपको ऐसा लगता है, ये देखिए सारे पानी में रहते हैं, बट आपको ऐसा लगता है होगा कि ये भी फिश हैं, बट नो, दे आर नॉट फिश. इनके गिल्स भी नहीं होते हैं. ये टाइम टू टाइम वाटर सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने के लिए. एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, इसीलिए ये मैमल्स हैं. मस्कीटोज एंड मलेरिया. Malaria is a disease that is caused by the bite of an infected female Anopheles mosquito. A person suffering from malaria has severe headache, fever and chills. It is often accompanied by vomiting and convulsions. Mosquitoes breed in stagnant water that is collected in puddles, empty tins, pots and buckets. मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है. और वो कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया होती है? फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो. अब जैसे कोई पर्सन अगर मलेरिया से सफ़र कर रहा है तो उसको हेडेक होता है, फीवर एंड चिल्स, इसके अलावा वॉमिटिंग एंड कन्वल्शंस भी.
मस्कीटोज आपके ब्रीड करते हैं स्टेगनेंट वाटर में, जो आपके पडल्स में कलेक्ट हो जाता है, आपके कोई भी एम्प्टी टिन है या पॉट या बकेट में कलेक्ट हो जाता है. हाउ कैन वी प्रिवेंट मलेरिया? Do not allow water to stagnate. Change the water in coolers every 4 to 5 days. Put a few drops of kerosene in it. Use mosquito repellents at home. Use mosquito nets while sleeping. सबसे पहले आप मलेरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वाटर को स्टैगनेट ना होने दें. वाटर कूलर्स को हर 4 से 5 दिन में चेंज करें उसका वाटर, उसमें कैरोसिन की ड्रॉप्स डाल दें. मस्कीटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें और सोते टाइम मस्कीटो नेट्स का यूज़ करें. Do you know Sir Ronald Ross discovered that female Anopheles mosquito spreads malaria. आपके सर रोनाल्ड रॉस जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो के काटने से मलेरिया होता है. Floating and sinking. A substance that dissolves in water is known as soluble substance. A substance that does not dissolve in water is known as insoluble substance. देखिए एक कोई भी सब्सटेंस जो पानी में आपका डिसॉल्व हो जाता है वो आपका क्या होता है? सॉल्युबल. और जो पानी में नहीं डिसॉल्व होता वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस. व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड वी गेट अ सॉल्यूशन. द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट. द लिक्विड इन व्हिच अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. देखिए जो सब्सटेंस आपका लिक्विड में जब डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है. जो सब्सटेंस आपका वाटर में डिसॉल्व करते हैं होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, और जिस लिक्विड में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. यानी कि आपका क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका बनता है सॉल्यूशन. दिस इज सॉल्यूट, राइट? देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स that float on water and some that sink in water. Whether the objects floats or sink depends on its density. अब कुछ ऑब्जेक्ट आपने नोटिस किया होगा कि पानी में तैरते हैं जबकि कुछ डूब जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पे. Density is the amount of matter present in a given volume of a material. Objects like iron nails, coins and stone sink in water because they are denser than water. Objects like thermocol, wood or plastic toys float on water. The cause is that they are less dense than water. Density का मतलब क्या है? कि अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल. अब जैसे आपने देखो आयरन नेल्स या कॉइन्स आप ले लीजिए, वो पानी में डूब जाते हैं. इसका मतलब वो क्या है? डेंसर है पानी से, डेंसर देन वाटर. और अगर हम थर्मोकॉल या वुड या प्लास्टिक टॉयज की बात करें वो पानी में तैरते हैं बिकॉज दे आर लेस डेंस देन वाटर. ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, तो जिनकी डेंसिटी कम होगी पानी से वो फ्लोट करेंगे. Recap. Plants that live in water are called aquatic plants. Animals that live in water are called aquatic animals. Malaria is caused by female Anopheles mosquito. Always remember that. Some substances dissolve in water and some do not. Some substances float on water and some sink. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.